Now I invite Vandana Mahajan to come here and share some experiences. We've been hearing from professionals, now we hear stories from patients about what their issues are. Vandana is a volunteer with Mother Trust and she counsels patients at the OPD and online Lung Connect as well. Thank you so much. A very good afternoon to all of you. I'm here representing the caregivers and the patients. I'm a palliative care counselor and my area of work is with patients and caregivers. I've been associated with the lung DMD for nearly 3 years now. I work out of the OPD and also online. Since I'm a palliative care person, I want to start with one of my most favorite quotes by Dame Cicely Saunders. She says, we can't change the outcome, but we can definitely affect the journey. And that is exactly what we strive to do here. There are different NGO partners working together. And as a patient who's been on the other side and seen how it is to do the running around and going through a lot of emotional trauma, I can, for one, vouch that our lung DMG is very organized and with a lot of NGO support, volunteers, social workers, everybody coming together to make life comfortable as far as possible. But in spite of that, there is still a lot of work that needs to go in. We've been able to sort out, say, about 50% of the problems, but there are 50% more that we as NGOs need to come together and look into. The patient is the center of everything, like one of the good doctors said. It is the aim that our patient is treated fully. Treatment doesn't only mean treating the disease. The patient is not the only one who's affected. So when we say cancer, cancer affects the entire family. And are we striving, are we giving them enough in terms of treatment that can take them long-term in providing total healing? That is what all the NGOs come together and work for. So we have put a small AV together. It is all voluntary. None of it is coerced under duress. Whatever these patients and the caregivers are going to talk about are their own experiences. So let's have the AV, please. कीमो और रेडिएशन हो चुका है और काफी अच्छी तरीके से हो चुका है और यहाँ से हमको काफी हेल्प मिल चुकी है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से। जैसे यहाँ के सोशल वर्कर्स जो हैं उन्होंने काफी हमारी हेल्प की है और जो यहाँ के जो महात्मा फुले का है हमको वहाँ से भी काफी हेल्प मिल चुकी है और जो यहाँ के जो वॉलंटियर्स है वो भी काफी सपोर्टिव है, उन्होंने भी हमारी काफी हेल्प की है। और एक्चुअली में मेरी मम्मी का कीमो और रेडिएशन का जो इलाज जो चल रहा था वो इलाज वगैरह काफी सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जो बीच में अनएक्सपेक्टेड चीजें आ गई, जैसे उनको डिप्रेशन में काफी चली गई, मतलब उनको बहुत सोच विचार पेन वगैरह काफी अनबेरेबल था उनके लिए बर्दाश्त करना और काफी कुछ चीजें ऐसी हो गई जो उनके लिए बहुत डिप्रेस हो गई, जिससे काफी फर्क पड़ा। यहाँ पे लेकिन डॉक्टर्स को भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये हम लोग इनका इस टाइम पे ये भी इलाज शुरू करेंगे तो उससे वो ठीक हो जाएंगे, तो हमको काफी हेल्प मिली यहाँ से। और बाकी जो है जो केयर है हमारा यहाँ पे केयर काफी हुआ। जो मेरे पापा हैं वो हैंडीकैप हैं, उनका एज अबाउट 60 है और मेरी मम्मी का भी एज अबाउट 60 है, तो उनको भी काफी प्रॉब्लम हुई एज के हिसाब से। जैसे आदमी रहता है वैसे अगर उनका एज ज्यादा नहीं रहता था तो वो मैनेज कर सकते थे, लेकिन अबाउट एज 60 और पापा हैंडीकैप हैं और उनका कोई और है नहीं, मतलब मेरे अलावा और उनका कोई है नहीं। मैं एक ही उनकी बेटी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, तो मेरे को अपने घर को भी संभालना रहता है और अपने माँ बाप को भी संभालना रहता है, तो मुझे ही स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब यहाँ पे भी देखो और वहाँ पे भी मेरी सास है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे हस्बैंड को संभालना पड़ता है, उनका
देखने के लिए। और बाकी मेरे मम्मी पापा के यहाँ पे भी घर पे कोई और है नहीं उनको केयर करने के लिए, लेकिन यहाँ से हमको काफी हेल्प मिली है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए। और उनका जो कीमो रेडिएशन है वो तो अच्छी तरीके से हो चुका है, बाकी जो आगे सर्जरी है उनकी बाकी, तो उनमें भी मैं वही चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने अभी हमारी हेल्प की है वैसे आगे भी वो हमारी हेल्प करते रहें, हमें हमेशा अपना समर्थन देते रहें। थैंक यू। लोग का 4 महीने से पिताजी का इलाज चल रहा है, इलाज भी बढ़िया चल रहा है, यहाँ का सबका सपोर्ट प्रॉपर मिल रहा है, सोशल वर्कर हमारी बहुत हेल्प कर रहा है, सबका व्यवहार बहुत अच्छा है। बस हमें रहने में दिक्कत हो रही है। हम लोग जब शुरू में आए तो हमें बोला गया कि यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो बोला गया कि आप 2 ही लोग रह सकते हैं, तो पेशेंट के साथ 2 लोग मुश्किल होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 तो फिर भी आते ही आते हैं, तो हमें रहने में दिक्कत हुई। और फिर थोड़ी भीड़ की वजह से लाइन में दिक्कत होती है, पेशेंट को ज्यादा दिक्कत होती है लाइन जब लगते हैं तो। और कीमो की जो दवाइयाँ हैं वो थोड़ी कॉस्टली हैं हॉस्पिटल में, ऑसिमार्टिनिब जो, तो वो मुझे लगता है कि अच्छी कीमत में मिलना चाहिए तो सारे पेशेंट उसको ले सकें। नमस्ते, मेरा नाम उषा सुबह जाधव है, मैं पेशेंट की बहन हूँ। पेशेंट का नाम है दीपक सुबह जाधव, मैं जिला गाँव से आई हूँ। पेशेंट को जब भी कोरोना था तब हम लोग को पता नहीं था कि इसको कैंसर हुआ है। इसको अचानक से मतलब बात करने के टाइम पे कैसा बैठ गया था, फिर बाद में डॉक्टर ने की तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा ऐसा है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आए टाटा में कोरोना केस में, जब टाटा वाले ने बोला कि इनका सीसी कैन करो, हम लोग ने बोला हम करके आए, नहीं होते यहाँ पे ही करना होगा, यहाँ का यहाँ पे, तो हम लोग ने उनका किया, तो टाइमिंग दिया उन्होंने 12 बजे का। हम लोग 10 बजे घर से निकले, घर से निकलने के बाद वहाँ पे 12 बजे आए। 12 बजे के बाद रात में 1 बजे सीटी कैन के लिए हम लोग को इतना प्रॉब्लम हुआ कि हाथ में पैसा भी नहीं था, खाने पीने का भी बांधा था, और कोरोना की वजह से सब दुकान सब बंद था। थोड़ा बहुत पैसा था, हम लोग 1 बजे निकले, स्टेशन गए, हम लोग टाटा स्टेशन गए, तो कभी का वड़ा पाव था वो भी मालूम नहीं था, पर चलने की वजह से हम दोनों भाई बहन वड़ा पाव खाए, एक पानी पी के हम लोग घर चले गए। उनका फिलहाल लंग्स में 4 स्टेज 1 कैंसर है और उनका ऑपरेशन नहीं होगा, डॉक्टर बोला सिर्फ केमो से उनका इलाज चलते रहेगा। तो मेरा टाटा हॉस्पिटल आने इसका बाद 25 डेज होने का बाद हमको पहला केमो मिला है, अभी फिलहाल केमो चल रहा है। तो पेशेंट के लिए मुसीबत यही है, जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो बहुत टाइम उनको रुकने पड़ता है। सुबह आते हैं तो 7 बजे तक, आ जाते हैं तो शाम को 5-6 बज जाता है। और फिलहाल मेरे बहुत सारा हेल्प हुआ, टास्क हमको हेल्प कर रहे हैं, 1-2 टास्क से हमको पैसा एक से मिला है और एक मिलने वाले हैं। इधर हम आए हैं दूसरा कोई टास्क का नंबर लेने के लिए, मरीज का ट्रीटमेंट करने के लिए। सबसे मरीज का तो तकलीफ है ही है, सागे वालों का भी थोड़ा बहुत तकलीफ है। हमको लगता है जैसे अगर यहाँ पे जो समझ लीजिए पेशेंट को केमो चलेगा उसका पहले, या पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट केमो है उसका भी बात हम बोल रहे हो, अगर ये लोग हॉस्पिटल वाले लोग मतलब दवा जैसे हमको भेलोर में हुआ था काटपाड़ी में, वो लोग मेडिसिन दे देता है, पैसा पेशेंट से काट लेता है, मतलब कार्ड से। पैसा अगर कोई बेनिफिट दिया रहता है तो अच्छा होगा, मतलब पेशेंट को एक जगह पैसा भरने जाओ, एक जगह उसको मतलब कोई बाबा 104 में काम है, दूसरा काम मैनेजमेंट में, तीसरा काम बिल्डिंग में है, वो तो कर लेता है पेशेंट, थोड़ा पेशेंट का सारे वाले लोग, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है अगर एक जगह में मेडिसिन वो लोग दे देंगे, जो पैसा है पैसा उससे काट लेता है, तो हमको लगता है तो पेशेंट का सारे वालों को थोड़ा आराम मिलता है। डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, वो लोग तो ट्रीटमेंट करते ही है, उसका ट्रीटमेंट के बारे में मेरा कुछ बोलना ही नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। थोड़ा टाइम अगर उस हिसाब से पेशेंट को जैसे केमो में अपॉइंटमेंट दिया जाता है, उसको 3 बजे, उसको 4 बजे, उसको 5 बजे, अगर ऐसा इसमें भी होता तो है, इसमें हमको 10:30 बजे का है, लेकिन हमको जाते जाते 4 बज जाता है।
बस इतना बोलो जो ये थोड़ा अच्छा होने से ठीक है। नमस्कार, हम आए हैं बंगाल से, कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में आए हैं बीमारी, कैंसर की बीमारी के लिए मुंबई आए हैं। मुंबई में आके हमको मदद मिला है और लॉकडाउन में हमको बहुत कैसा औषधि मिलेगा, कैसा क्या करेगा, जैसा औषधि मिला है। लॉकडाउन में भी हमको ऑनलाइन में हमारा औषधि किया है और इधर भी मुंबई में आके हमको बहुत मदद मिल रहा है, अभी तक मिल रहा है, दवाई मिल रहा है और इससे बोलने का नहीं, बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है, बहुत बढ़िया चीज है। So you all heard what the patients had to say and the caregivers had to say. They've raised very basic challenges that they face, and I'm sure in the panel discussion that we're having, some of these challenges will be addressed. सगे वाले भी मैटर करते हैं, बहुत लंबा वेट टाइम होता है, कीमोथेरेपी थोड़ा और ऑर्गेनाइज हो जाए तो बेटर रहेगा. These are very, very simple queries that the patient have raised. How can we come together to resolve these queries? We'll be waiting to hear in the panel discussion. Maybe we can call Pankaj Uncle. Pankaj Uncle, are you there? Yeah, I'm here. Yes, Thank Pankaj you very Uncle. much. Yes, we'd like to know your You views. already said so nice things, and the patients have also given their feedback. I'm sure the authorities will take care of those things. But then I want to say say that what Dr. Jaffrey said, the support groups need to be supported. Support groups also need to be strengthened. When so much medical innovations are happening, new things are coming, cancer is running away. Cancer is running away and doctors are very busy pushing it out. But then when we have such beautiful, such wonderful doctors with us, such wonderful people like Tata's, like even like AIMS, so much research is going on and cancer is, as I said, running away. We need to take care of poorest of poor people. Poorest of poor people need a lot of support. And for that, these NGOs need to be trained also. I wanted to specifically bring in this point that NGOs are those volunteers who have appointed themselves. Nobody has appointed NGOs. They are all good thinking, good intentioned people who could also be going on the wrong side. They need to be guided. They need to be trained. Some sort of support should be officially given to them. That will be wonderful. And like this patient advocacy, so you have to take up points with the government. There have to be some groups and they have to come out from NGOs only. So the support to NGOs is very, very important, and we should not be thinking of pushing out NGOs. NGOs need to be strengthened, and I'm very happy the type of activity this my dear Sanjeev is doing. It's a wonderful activity. This is helping a lot. Whether I'm in Delhi or I am in Bombay, it doesn't matter. We can freely talk. Dr. Sunil is always there to interact, to talk, to give advice. Dr. Prabhas is so supportive. It's very, very important that we should support NGOs and we should have interaction with NGOs.